Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is EduMotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduMotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Hello everyone. On the last day, in the last video, you have seen that we have started the class 9th topic, that is the polynomial. So मैथमेटिक्स में का 9th स्टैंडर्ड का हमने पॉलिनोमियल जो लेसन है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद में हमने उसमें एग्जैक्टली देखा कि कौन से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है, जिन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के जो पावर्स हैं वो होल नंबर रहते हैं तब उनको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स के different types, monomials, binomial, trinomials and polynomial, that also we have seen. And after that on the basis of degree of the polynomial, तो डिग्री के हिसाब से उनके टाइप्स जो है वो भी हमने देखे थे। if the degree is 1 then that polynomial is called linear polynomial. if the degree is 2 that is a quadratic polynomial. if the degree is 3 that is a cubic polynomial. degree is 4 biquadratic polynomial, and if the degree is 0 that polynomial is called constant polynomial. That all types of polynomials we have seen. After that we have seen that how to perform the different operations on the polynomial. So the basic arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication and division, that one we have to see. So in that we have covered the two operation last video, that is a subtraction and multiplication of the polynomials, and in that only addition and division was left over. So that one we will be see in this video. Okay, so there is in front of you 3 questions are given. 2 questions for division and 1 question is for the addition. See the question number 4. 3 questions before this we have covered. One is a subtraction and 2 multiplication problems we have seen. And this fourth question is the fourth example is related with the addition of the polynomial. Okay, so now see here total here for addition purpose they have given 2 polynomials. This one is a 1 polynomial and this is 1 polynomial. Okay, so single term is also polynomial. We have seen that 2 terms, that is also polynomial. मोनो जो है तो यहाँ पे देखना है कि हमें इन 2 polynomials की क्या करनी है, एडिशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट the first polynomial, that is 3m square n plus 5mn square minus 7mn. पहला पॉलिनोमियल हो गया है. अब दूसरा पॉलिनोमियल लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, एडिशन करना है तो सम प्लस एडिशन की साइन दूंगा मैं, और 2m square n minus mn square प्लस mn. सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि सब्ट्रैक्शन साइन देने के बाद दूसरा जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में दूसरे ब्रैकेट में के सभी साइंस जो है चेंज होते हैं, ठीक है. बट हियर एडिशन वाज देयर, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन एनी ब्रैकेट. तो देखो सॉल्व करते समय जो लाइक टर्म्स होते हैं उन्हीं की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है. लाइक टर्म्स किसी कहा जाता है कि टर्म्स कंटेनिंग सेम वेरिएबल एंड सेम पावर. वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए तब उनको क्या कहा जाएगा, लाइक टर्म्स. So see here 3m square n. Where is there any other term which will be similar as a m square n? See here, this is a m square n and this is also m square n. Okay, so there will be addition of these two. So 3 plus 2, 5m square n, 5m square n. Again mn square. So there is a one term of mn square here and one more term is here, that is a
minus m square. Okay, so from the 5 m square there is a 1 m square will be subtracted and it gives a 4 mn square. 4 mn square. Okay, now only the terms related with the mn, and here is also mn. So from 1 mn 7 mn is subtracted, so it gives minus 6 mn. तो यहाँ तक हमारा सब्ट्रैक्शन या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल का एडिशन कर सकते हैं। सो ये उसका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स उन्होंने दिए थे, दोनों पॉलिनोमियल्स की हमने एडिशन की तो हमें फाइनली हमें क्या मिल गया है, 5m square n plus 4mn square minus 6mn. So this is the final answer. इसके बाद में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है ऐड सब्ट्रैक्ट करने के। So this is only the final answer. Okay. After this we will see the example 5, that is a divide. तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया. Now we will see the division of polynomial. So exactly how the division is performed. हमें रेगुलर मेथड पता है डिवीजन का, जो है नॉर्मल मेथड हम न्यूमेरिकल जो डिवाइड करते हैं उसी वे से इसका डिवीजन हमें करना है। तो देखते हैं कि एग्जांपल 5 को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। दिस इज आंसर फॉर 4 एंड दिस इज फॉर 5th आंसर. ओके, दिस इज द 4th and this one is the 5th answer. Now see, for the 5th one what we have to do, first of all the first 2 plus 2x square, this is what, this is the dividend, and x plus 2 is what, that is the divisor. तो डिवाइजर हमें बाहर लिखना है और डिविडेंड अंदर लिखना है। सो जो भी डिविडेंड है उसको मैं पहले क्या करता हूँ, जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। जो डिविडेंड है उसको मैं जनरल फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म या और उसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म, हाउ इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म कैसे होता है आपको पता है। देखो जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं इंडेक्स फॉर्म लिखूंगा, IF, दिस इज व्हाट इंडेक्स फॉर्म। उसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, 2x स्क्वायर, उसके बाद x की टर्म होनी चाहिए लेकिन नहीं है उसमें, तो क्या करूंगा मैं वहां पे 0x प्लस 2। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल का जो है फॉर्म्स होते हैं। सो व्हिच आर द फॉर्म्स रिलेटेड विद द पॉलिनोमियल, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या देखा था हमने, इंडेक्स फॉर्म। आफ्टर दैट वी हैव सीन कोएफिशिएंट फॉर्म। द थ्री फॉर्म्स आर देयर फॉर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म एंड कोएफिशिएंट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है पॉलिनोमियल का कौन सा फॉर्म लिखा है, इंडेक्स फॉर्म लिखा है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इसको मुझे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, दैट आई हैव टू डिवाइड बाय द x प्लस 2। x प्लस 2 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। एक तो आप ऊपर लिख सकते हैं, स्पेस है तो, नहीं तो फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो लिखा तो भी चलेगा, दोनों करेक्ट है। ठीक है, खाली हमें पता होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर स्पेस नहीं है, मैं राइट साइड लिखूंगा। तो देखो x प्लस 2 है, तो मुझे बताओ यहाँ पे x प्लस 2 था, x प्लस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे फर्स्ट टर्म मिल सकती है। फोकस यहाँ पे करो, डिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डिवीजन हार्ड जाता है, तो एग्जैक्टली उसमें है क्या, देखो उतना कुछ हार्ड नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में आए वाले जो टर्म्स है वो कैसे आए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो x को क्या करने के बाद मुझे 2x स्क्वायर मिल सकता है, सो मुझे थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, x को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 2x स्क्वायर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों किया मैंने 2x से, समझ में आया आपको, क्योंकि मुझे अंदर 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर करना है। x को 2x स्क्वायर करने के लिए उसको 2 से और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी परफॉर्म होगा क्या होगा, 2x into x 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2x into 2 क्या होगा, 4x। ये आने वाला आंसर है। ठीक है, सो ये किससे मल्टीप्लाई करने के बाद, 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वो मिलने वाला है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर और प्लस क्या है, 4x, प्लस 4x मिल गया। ठीक है, नीचे लिखना है उसके नीचे। अब देखो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे वाले के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन की पूरी साइन चेंज हो जाएगी। सो 2x स्क्वायर गेट कैंसिल और 0x में से 4x चला गया तो क्या आ जाएगा, -4x, ऊपर का +2 एज इट इज कैरी होगा नीचे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, x है, मेरे पास क्या है, x + 2 है।
तो x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे -4x मिल सकता है। सो आई नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई बाय द -4। सो अगर मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। नो नीड टू थिंक अबाउट द सेकंड टर्म, खाली हमें क्या चाहिए, पहले टर्म के बारे में ही सोचना है, फर्स्ट टर्म आना चाहिए, इस तरह से उसे मल्टीप्लाई करें, अगला टर्म अपने आप आ जाएगा, ठीक है, जो भी हो। सो 4 से -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, -4 into x, okay, -4, this is not a subtraction, okay, I am just multiplying here by the -4, okay, -4 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो -4 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो -4 into x कितना आ जाएगा, -4x, okay, and -4 into 2 that is -8। तो ये मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट के बाद जो भी आना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया है मैंने, -4 से, तो यहाँ पे मैं -4 लिखूंगा, ठीक है। तो देखो फिर -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, -4x, ठीक है, और क्या आएगा, -8, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, क्योंकि माइनस करते समय नीचे वाले साइन चेंज होते हैं। सो +4x -4x गेट कैंसिल एंड 8 + 2 कितना आता है, 10 आता है, ओके, समझ में आया। फिर तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया है। तो क्या है फिर बोलो, दिस वन इज अ क्वेश्चन, दिस इज व्हाट, क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट, 2x - 4, ये क्या है, क्वेश्चन। व्हाट इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर इज अ 10, ओके। एंड यहाँ पे डिविडेंड क्या था, डिविडेंड जो था, जो आपको ने ऊपर लिखा है क्या है ना, 2x² + 2, 2x² + 2, ये था हमारा डिविडेंड। और डिवाइजर कौन सा था, डिवाइजर कौन सा था, x + 2, दैट वन वी हैव डिवाइड बाय द x + 2 से हमने डिवाइड किया था। तो इस तरह से हमने ये डिवीजन परफॉर्म किया है। तो समझ में आया तो किस तरह से डिवीजन होता है, एक एडिशन का क्वेश्चन हो गया और एक डिवीजन का भी क्वेश्चन हो गया, तो किस तरह से डिवाइड करना आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन बाकी है डिवीजन का, तो किस तरह से ये जो फाइनल आंसर जो है इस तरह से आपको लिखना चाहिए, तो कि सामने वाले को जल्दी से समझ में आ जाएगा कि आंसर्स क्या आना है, ठीक है। समटाइम्स वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इस तरह से भी हमें कई बार लिखना पड़ता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो हम देखेंगे। तो थोड़ा सा गौर करो, फोकस करो, कौन से क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जिसमें हमें क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन करना है। सो हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स आर गिवन देयर, 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। एक पॉलिनोमियल है जिसमें आपको बहुत सारे टर्म्स दिखाई देते हैं, जो कि वो क्या है, उसका डिविडेंड है, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, डिवाइजर। सो सी हियर, सो फर्स्ट वन जो है इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स। 5 टर्म्स वाला क्या है, डिविडेंड है, उसको किससे डिवाइड करना है हमें, यहाँ पे इस डिवाइजर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि जो डिविडेंड ये वाला है क्या वो इंडेक्स फॉर्म में है प्रॉपर्ली। तो देखो यहाँ पे x का पावर मैक्सिमम पावर 5 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, लेकिन x पावर 1 वाला नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको इंडेक्स फॉर्म में प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं डिवीजन में ही उसको इंडेक्स फॉर्म में लेता हूँ। सो देखो क्या आ जाएगा, 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x²। अब इंडेक्स फॉर्म में x² के बाद क्या आना चाहिए था, x वाला टर्म आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए 0x लिख देता हूँ और ये फाइनली कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, x² माइनस x से डिवाइड करना है, x² माइनस x से, और जो भी क्वेश्चन आता है मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ x² माइनस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल सकता है, 5x⁵ मिलना चाहिए। तो देखो x² है, x² को मैं अगर x³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा पावर उसका। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, देखो नीचे लिखता हूँ थोड़ा, x² माइनस x, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 5x³ से, ठीक है। तो देखो 5x³ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आंसर, सो आंसर आएगा 5x⁵ और माइनस 5x⁴। समझ में आया,
देखो x क्यूब से अगर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे 5x5 और -5x⁴। तो चलिए आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, किससे मल्टीप्लाई किया है 5x क्यूब से, ठीक है। क्वेश्चन में 5x³ और मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट कितना आ रहा है 5x⁵ और वहाँ पे क्या है माइनस सिंबल आ रहा है, सो माइनस लिखना है। कितना आ रहा है 5x⁴। चलो आगे करते जाते हैं। सो सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे के साइन चेंज होंगे, सो दिस वन विल बी प्लस, सो ये कैंसिल हो जाएगा 5x⁵ - 5x⁵। तो देखो 4x⁴ एंड 5x⁴ इनकी क्या होगी एडिशन, तो कितना आ जाएगा 9x⁴। अब ऊपर वाला टर्म नीचे लेंगे -3x³, ठीक है। धीरे धीरे लिया तो भी चलता है, एक साथ लिया तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे x² - x है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद x⁴ आ सकता है, तो 9x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है टर्म अगेन x² - x है, सो अगर उसको मैंने 9x² से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा 9x⁴ मिलेगा। देखो क्या मिलेगा 9x⁴ - 9x³, ठीक है। वो जो भी आंसर आ रहा है उसे यहाँ पे लिखना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किया था 9x² से, सो दैट इज प्लस 9x², ठीक है। तो देखो 9x² से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 9x⁴ और बाद में माइनस 9x³, ठीक है। तो देखो सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल, 9x⁴ - 9x⁴ 0 आया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 9x³ में से 3x³ चला गया, कितना रहेगा 6x³, ठीक है। बाद में ऊपर की टर्म देखो कहां तक आ गए थे हम, क्यूब लिया था, अब स्क्वायर लेना है प्लस 2x², एक साथ लिए तो भी चलता है, एक एक टर्म लिए तो भी चलेगा। अब देखो x² है, मुझे क्या करना पड़ेगा x² है तो उसको x से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x³ आ सकता है, वो भी कौन सा 6x, तो क्या करना है 6x से मल्टीप्लाई करना है, और किसको x² - x को, तो क्या मिलेगा मुझे देखो 6x³ - 6x²। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आने वाला है वो लिख देंगे यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे प्लस 6x से, ठीक है। तो देखो क्या मिल गया 6x³, उसके बाद प्लस इंटू माइनस -6x² सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज, ये हो गया कैंसिल, 2x² + 6x कितना आया 8x², ठीक है। अब देखो और क्या रह गया है 8x² हो गया, अब ऊपर से क्या लेना है 0x लेना है, ठीक है। और 2x² लिया था, अब आ गया नीचे 0x। तो देखो अब x² है, x² को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर तो सेम है यहाँ पे। जस्ट वी वांट अ कोएफिशिएंट, क्या कोएफिशिएंट चाहिए आपको 8 चाहिए, तो मैं डायरेक्टली उसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे 8 × x² 8x² आ गया, ठीक है। और 8 से x को मल्टीप्लाई किया तो -8x आ गया, ठीक है। देखो अब सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज, माइनस ये प्लस हो गया, सो दिस वन विल बी कैंसिल्ड, 8x² - 8x² इज कैंसिल। सो अब देखो 0x + 8x कितना आता है 8x, कितना आ गया 8x, और लास्ट में क्या है +2, ठीक है, +2 कितना आया 8x + 2, यहाँ तक हम आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ तक जो आया है, तो अब x² है और यहाँ पे कितना आया है 8x + 2 आने वाला है। सो इट मीन्स दैट कि हमारा जो है रिमाइंडर है जो है वहां से जो रिमाइंडर पे जो वेरिएबल का जो पावर है वो इसके पावर से क्या हो गया है कम हो गया है। इट मीन्स दैट कि अब हमें इससे आगे हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड करने की कोशिश की तो x का पावर कैसा जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा। सो यहाँ पे जो है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम लास्ट में क्या कर देंगे, जो भी आंसर हमारा आने वाला है दिस इज विल बी द क्वेश्चन 5x³ यहाँ तक आ गए हम, क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्या है रिमाइंडर, अभी तक इतना जो भी आने वाला है वो है वो रिमाइंडर, एंड वो जो आने वाला जो फाइनल वहां पे दिखाई दे रहा है वो क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद में देखते हैं हम प्ले कर हाँ ओके। So now this completed, this is the remainder and this is the question. We just have to write this one into the form of the
सी हर एक जो डिवीजन का क्वेश्चन है जिसमें अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि राइट दिस इन दिस फॉर्म, तो उस फॉर्म में लिखना चाहिए। तो वो कौन सा फॉर्म होता है जो हमने पहले से सीखने वाला है। डिविडेंड कैसे रहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो डिविडेंड कौन सा है, यहाँ पे दी वाला है आपको 5x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2। ये आपका क्या है, डिविडेंड है। इसको हमें क्या लिखना है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे सो इक्वल्स टू डिवाइजर इज व्हाट, x² माइनस x, ये डिवाइजर हो गया। इसका जो क्वोशिएंट आने वाला है वो लिखना है हमें। मल्टीप्लिकेशन में क्या आया क्वेश्चन, 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x, ये हो गया। और फाइनली क्या करना है हमें, रिमाइंडर ऐड करना है। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, 8x प्लस 2। तो 8x प्लस 2 उसका रिमाइंडर जो है ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजन का हर बार क्वेश्चन है हो गया तो कंप्लीट उसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसके बाद में जो है जो डिवीजन का जनरल मेथड हमने देख लिया, तो और एक टाइप से हम उसका डिवीजन कर सकते हैं। सो उस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। सो रिलेटेड टू द सिंथेटिक डिवीजन वो कंसेप्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक